دیکھیے جی جو اسکواڈ اناؤنس ہوئی ہے سب کے سامنے، اور ایسی کوئی بات ہی نہیں کہ اس میں سے ہم چینجز کریں، مگر ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس اپرچونیٹی بھی موجود ہے، کیونکہ کل بھی ہمارا میچ ہے اور الحمدللہ ہمارے پاس 3-4 دن ہے، مگر یہ بھی کوئی لازمی بات نہیں ہے کہ یار ہم اپنی ٹیم سے خوش نہیں ہیں یا ہم اس کو ضرور سوچیں اس باتوں پہ، کیونکہ جو ٹیم اناؤنس ہوئی وہ بیسٹ اناؤنس ہوئی الحمدللہ، مگر یہ ہے کہ ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم ٹیم کو چینج کر رہے ہیں یا اس کو دیکھ رہے ہیں۔ رضوان، فہیم کے بارے میں بہت بات ہوئی کہ فہیم ایک دم سے آ گئے ٹیم میں، 1 سال سے نہیں کھیل رہے تھے، اور اس کے بعد پھر بات ہو رہی تھی کہ خوش دل شاہ بھی، بہت ساری یہ خبریں ہیں کہ انفلوئنس آپ کا رہا، آپ کی لائکنگ میں ہے وہ، کہ یہ دونوں باتوں پہ آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ فہیم اشرف کی اگر بات کی جائے تو اگر آپ اس کی 2 سال کی پرفارمنس دیکھ لیں، اس کی او ڈی آئی میں لاسٹ ٹائم ہے جس میں 46 کی ایوریج ہے۔ دیکھیے بعض اوقات آپ کو کچھ پلیئر ایسے لگیں گے کہ یار 2 سال بعد آ رہے ہیں، 1.5 سال بعد آ رہے ہیں، مگر آپ ٹیم کی کمبینیشن کو دیکھتے ہوئے ٹیم ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اس میں شاید آپ کو سم ٹائم لگتا ہے کہ یار یہ پلیئر کہیں سوچ میں بھی نہیں تھا، یہ کہاں سے آ گیا ہے، تو اگر آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں جیسے ہمارے پاس آل راؤنڈر چاہیے تھا، فاسٹ بالنگ آل راؤنڈر چاہیے تھا، تو اس میں جو بیسٹ اپرچونیٹیز ابھی تک جو چل رہی تھی اس میں عامر جمال اور اسی کی چل رہی تھی، کیونکہ بیٹنگ ہمیں 7 نمبر پہ بیٹسمین چاہیے ہوتا، ساتھ میں بولنگ والا، تو جو ریسنٹلی اب عامر جمال تو ٹیسٹ اسکواڈ میں بھی ساتھ چل رہا ہے، وہاں پہ بھی چل رہا ہے، مگر وہ جو سلیکشن کمیٹی نے 45 اس کی ایوریج دیکھی لاسٹ 2 سے، تو اس میں سے بیسٹ چوائس ہمارے لیے فہیم اشرفی تھا۔ اور جہاں تک خوش دل شاہ کی بات ہے تو سب کی میرے خیال سے آپ لوگ بی پی ایل دیکھتے ہیں یا اس ریسنٹلی ابھی چیمپئنس کپ دیکھا ہوں تو وہ بہترین فارم میں ہے، اس کی پرفارمنس آپ سب کے سامنے، اس پہ تو کوئی بات نہیں کرنی چاہیے میرے خیال سے۔ ہاں لائکنگ ڈس لائکنگ میرے لیے پورے پاکستان کے پلیئر اس کو لائک کرتا ہوں، اور جو بیسٹ ہمارے پاکستان کے لیے ہوگا اس ٹائم پہ اپرچونیٹی ہوگی اسی کو انشاءاللہ ہم چانس دیں گے۔ السلام علیکم رضوان، ابو بکر تارڑ فرام کرک ویک۔ رضوان، پاکستان ہمیشہ پیس بالر پہ ریلائی کرتا ہے اور پیس بالر ہمارے اچھے ہیں، اور آپ کے انڈر بھی ہم نے 2 سیریز جو جیتی ہیں اسی میں پیس بالرز جو تھے انہوں نے پرفارمنس دی ہے، تو ایز اے کیپٹن آپ اس چیمپئنز ٹرافی اور ٹرائی سیریز میں کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کنڈیشنز میں ہم 4 پیسرز دیکھ سکتے ہیں یا پیس بالنگ کو کوئی ہیلپ مل سکتی ہے؟ یار 2 نام نالے چیمپئنز ٹرافی ٹرائی سیریز، پہلے ٹرائی سیریز کی ہے پریس کانفرنس، اسی پہ بات کر لیتے کہ چیمپئن ٹرافی شاید پھر ہو ایک پریس کانفرنس۔ دیکھیے کنڈیشن کیا ڈیمانڈ کرتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم 4 پیسر کے ساتھ جائیں یا 2 اسپنر کے ساتھ جائیں یا ہمارے پاس کمبینیشن میں 7 ہی 7 بیٹسمین ہوں۔ ڈیمانڈ کیا ہے؟ ڈیمانڈ مختلف قسم کی ہوتی ہے بعض اوقات، ایک تو مخالف ٹیم کی آپ اس کی اسٹرینتھ دیکھتے اس حساب سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، یا جو 4 پیسر ہو تو مخالف ٹیم، یا پچ کی ریکوائرمنٹ ایسی ہوتی ہے، یا ڈیو فیکٹر ہوتا ہے، تو یہ کچھ ڈیمانڈ ایسی ہوتی ہے جو اس کو آپ دیکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ ابھی تک تو ہمارے لیے ماشاءاللہ ایک قذافی اسٹیڈیم بھی نیو ہی ہے، آج جائیں گے دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کیا ڈیمانڈ کرتی ہے پچ، اس کے حساب سے کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ رضوان، سائم ایوب کے نہ ہونے سے کتنا کمبینیشن آپ کا ڈسٹرب ہوا، کتنی اس کی کمی محسوس کریں گے، اور اب فخر کی جگہ اوپنر کے طور پر باتیں ہو رہی ہیں کون اوپن کرے گا، تو وہ راز جو ہے وہ آج میرے خیال میں اوپن کر ہی دے۔ یار اس کے جواب کیا، ہم وہ اصل ایک بات کی تھی نا، کنگ کر لے گا تو یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ سیم ایوب دیکھیں ہماری سب کو پتا کس طرح اس نے پرفارمنس دی ہے، اور جن کنڈیشن میں دی ہے اور جن بالر کے پوزیشن کے خلاف دی ہے وہ ایکسیپشنل تھا۔ بہرحال اس کی کمی اب ٹیم میں ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا پیکیج تھا پاکستان کے لیے کہ وہ کہیں پہ بھی کسی جگہ پہ فٹ ہو سکتا تھا، وہ اس کی بالنگ دیکھ لے، اس کی فیلڈنگ دیکھ لے، اس کی بیٹنگ دیکھ لیں، تو کمی تو ہے اس ٹائم پاکستان میں۔ ڈسٹرب بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے چیزیں ہوئی ہے، مگر جو اللہ ڈیمانڈ مانگتا ہے ہم سے اس کو اگر ہم دیکھیں نا تو ہماری نظریں جو ہے نا، نظریں بڑے بڑے پلیئروں پہ نہیں ہونی چاہیے، وہ پروسیس پہ ہونی چاہیے، تو اس کی کمی بیشی بالکل ضرور ہے، پاکستان کے لیے ڈسٹرب بھی ہوئی ہے، مگر ایسا نہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ بالکل ہی ہماری ٹیم بیٹھ گئی ہے، کوئی ایکسکیوز ہمارے لیے ہے، کیونکہ پروسیس ابھی بھی وہی ہے، ڈیمانڈ اللہ پاک کوئی بھی کرتا ہے، رزلٹ اللہ پاک کوئی دیتا ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم رضوان۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، ابھی اگر میں غلط نہیں سنا تو آپ نے فہیم کا بولا 46 کی ایوریج 2 سالوں سے، ان کا ہائیسٹ اسکور 11 ہے، شاید مسٹیکنلی ہے اسٹیٹ تھوڑے سے، ان کا ہائیسٹ اسکور 11 ہے فہیم اشرف کا۔ اچھا دوسرا، جب آپ کو کپتان بنایا تو جتنے بھی فارمر کرکٹرس ہیں میجورٹی نے آپ کو بہت سپورٹ کیا کہ پاکستان کی بیسٹ آپشن رضوان ہیں۔ ابھی ہمارے ہاں پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے، بینگ کیپٹن ایک تو ہوتا ہے نا، آپ ایز اے پلیئر بینگ کیپٹن آپ کی کیا موٹیویشن ہے، کیا من میں بنا رکھا ہوا ہے آپ نے؟ دیکھیے جی
फहीम अशरफ की जो स्टेट्स पहली बात हो तो हमारे पास सांचीमा साहब है, वो सब पूरा स्टेट्स देखता रहता है, वो पीछे सारी सिलेक्शन कमेटी में उसका एक अहम रोल है, सबको पता है, उस पूरा डोमेस्टिक देखता है, पूरा एक चीज़ बना के देता है, जिससे हमें भी वही दिया गया था कि पिछले 2 साल से उसकी स्टेट्स 46 प्लस एवरेज, 46 की एवरेज, 45 प्लस एवरेज है, सॉरी लिस्ट एक ही जिसमें ओडीआई लिस्ट एक ही सॉरी ओडीआई की नहीं, लिस्ट एक ही। और जहाँ तक एक्स क्रिकेटर्स है उससे तो देखिए मुझे खुशी इस चीज़ की है कि अगर जैसे वसीम भाई है, वसीम अकरम भाई, वो कमेंट्री करते हैं या बाहर होते हैं, अगर उसने हमेशा कभी हमें तनकीद किया भी है ना, तनकीद तो साथ में बताया हुआ भी है और हमने उसे सीखा भी है उन लोगों से। जैसे अभी अगर मुझे लगता है कि मैंने नसीम शाह से शोएब अख्तर के बारे में पूछा था, उसने कहा था कि मुझे अगर उसने तनकीद किया तो मुझे बताया भी है, तो मुझे कुछ से मैं नहीं मिला मगर कुछ से मिला हूँ, तो मुझे ये खुशी इस चीज़ की है अगर वो हमें किसी बात पे किसी वीकनेस पे टारगेट करते भी है तो साथ में बताते भी है कि इसका अगर ये करेंगे तो ये बेस्ट हो सकता है, तो हमें इस चीज़ की खुदा खुशी है कि हमें बताए भी। और जिस तरह मोहब्बत मिली है सबसे, मैं तो नहीं समझता किसी एक ने ना कहा हो मेरे बारे में, बहरहाल अल्लाह उनको खैर दे और अल्लाह कह रहे कि जो उन लोगों ने बातें की है मेरे नज़दीक एक्सपेक्टेशन उसने रखी है कि अल्लाह करे मुझसे अल्लाह पाक वैसे ही काम ले पाकिस्तान के लिए। रिजवान चौधरी अशरफ, रिजवान हमने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीती स्पिन विकेटें बनाकर स्पिन बॉलर्स के साथ, क्योंकि आमतौर पर हम अपनी जो होम कंडीशन पर खेलते हैं या एशिया की विकेटों पर खेलते हैं तो ज़्यादातर स्पिनर्स कामयाब होते हैं, लेकिन हमारे स्क्वाड में सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है, तो समझते हैं कि ये जो हमारी विकेटें हैं इस फास्ट बॉलर्स की मदद देंगी और हमने एक ही स्पिन बॉलर शामिल किया है। देखिए आप जब टीम बनाते हैं तो उसके साथ सोचते भी है प्लेइंग 11 के लिए भी और कंडीशन को देखते हुए भी। जिस तरह कंडीशंस अभी देखने आ रहा है कि ड्यू फैक्टर हो सकता है ना सबके सामने, तो शायद उस पर 2 स्पिनर आपके मेरे ख्याल से काम नहीं आएंगे वहाँ पे। अगर होंगे भी तो हमारे पास चॉइस में शायद एक सलमान अली गालिडी है, शायद खुशदिल की जगह बने तो वो भी हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि स्पिनर अगर खुदा न खासा कहीं पे इंजर्ड भी होता है ना, वो इतना इंजर्ड हो सकता है कि वो मैच खेल सकता है, या इतना ही इंजर्ड हो गया तो पूरे वो 15 स्क्वाड से बाहर हो सकता है, तो हमारे पास किसी भी उसकी चॉइस आ सकती है। तो वाइड नॉट हमने ये सोचा है कि इस अपॉर्चुनिटी को हम कहीं और पे यूज़ कर सके, क्योंकि सबको पता है कि इब्रार फर्स्ट चॉइस इस टाइम बन रही है पाकिस्तान की ओडीआई वाइट बॉल की स्क्वाड में, तो इसलिए हमने दूसरे स्पिनर की तरफ ज़्यादा इसलिए नहीं सोचा। रिजवान भाई, आपने इधर जी आपने खुशदिल शाह की और फ़हीम अशरफ की बैटिंग की तो बात कर दी है, जिस तरह की कंडीशंस होती हैं पाकिस्तान की चैम्पियन ट्रॉफी में भी वो दोनों हिस्सा है स्क्वाड का, तो आपको लगता है कि उनकी बॉलिंग इस तरह की विकेटों पे वो साजगार आपके लिए साबित होगी, क्योंकि यहाँ पे तो स्पेशलिस्ट को भी मार पड़ती है? तो ये भी स्पेशलिस्ट ये भी मारेंगे ना फिर इंशाल्लाह। अच्छा बॉलिंग पे देखिए, बॉलिंग आप बेस्ट चॉइस निकालते हैं पाकिस्तान में। आप देखिए, आप ऐसे नहीं कर सकते कि अभी हम इस टाइम कोई ऑस्ट्रेलिया से एक प्लेयर ले ले या न्यूजीलैंड से कोई ले ले या इंग्लैंड से कोई ले ले। आपके पास करंट टाइम है, जैसे साहब ने इस पर काफ़ी जोर दिया हुआ है कि जिस टाइम बेस्ट जो फॉर्म में लड़के हमारे पास वो आने चाहिए, और अब लोग देख भी रहे कि बेस्ट फॉर्म इस टाइम कौन कौन नजर आ रहा है, तो उन फॉर्म में से जो बेस्ट निकाल दे उन्हीं को आप निकाल दे, बजाय से कि हम पुराने ज़माने की चीज़ों पे चले जाएं, उनको फिर ले आएँ जो मतलब ज़्यादातर वो पहले से होता था। तो हमें तो यही लगा कि इस टाइम खुशदिल शाह सबसे बेस्ट कर रहा है। चैंपियंस कप में उसने किया जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक है, उसके बाद BPL गया है, उसने वहाँ पे परफॉर्म किया है, तो मेरे ख्याल से बेस्ट चॉइस इस टाइम नहीं है। हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, इससे और बॉलर्स भी है जिसमें यंगस्टर भी है जो थोड़ा सा अभी करंट है में नहीं है, तो फ़हीम अशरफ की भी यही आंसर उसके लिए भी। रिजवान भाई, अभी हाल ही में आपने साउथ अफ्रीका को ओडीआई में शिकस्त दी। साउथ अफ्रीका के अंदर आपका ट्राई सीरीज़ है न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के साथ, तो कितने पर उम्मीद हैं ट्राई सीरीज़ को लेके, क्योंकि इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी होगी, तो इस ट्राई सीरीज़ के लिए कोई ख़ास प्लान? 3 दिन आपने प्रैक्टिस भी की है, कई कम्बिनेशंस पे भी काम किया होगा, तो ट्राई सीरीज़ के लिए कोई ख़ास प्लान, किस तरह जाएंगे कि पर उम्मीद हैं जीतने के लिए, ताकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी में जीते हुए मोराल के साथ एंटर पाकिस्तान? देखिए, लाहौर में हमारा एक ही मैच है, और क्योंकि इंशाल्लाह ने चाहा तो शायद सेमीफाइनल पर एक इस तरफ आज अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह, तो उसके लिए तो हमें देखिए हमें भी फ़िलहाल हम अवे इस ग्राउंड के लिए, क्योंकि हम पिछले कितने टाइम हुआ है कि हम अपने कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच नहीं खेले, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, फिर इधर उधर घूमते फिरते हैं, फिर टेस्ट सीरीज़ हमारी मुल्तान में रही, मगर वो हमने इस तरह पिचेस बनाई कि जो डिमांड थी उसके लिहाज से। तो अभी हमारे लिए ये भी यहाँ से भी देखना है कि यार इस टाइम पिच का क्या कंडीशन हो सकता है, क्योंकि चेंज होते रहते हैं चीज़ें। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि
पूरा स्टेडियम न्यू हो गया है, अब ये खुल गया है, अब इसमें हवा की क्या कंडीशन होगी, ड्यू की क्या कंडीशन होगी, तो ये एक बहुत बेस्ट प्रिपरेशन हमारे लिए एक चांस है कि आप ये मैच इंशाल्लाह इसको यहाँ मैच के लिए उसमें जो चीज़ें पहले से अगर डिफरेंट थी उसको जल्दी से एब्जॉर्ब करे, सीखे, और सेम फिर कराची में भी है, तो एक बेस्ट प्रिपरेशन हमारी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। अच्छा रिजवान, मैं थोड़ा सा आम से सादा इंसान हूँ, मुझे बातें समझ नहीं आती। आपने अभी कहा कि हमें पर्सनालिटीज़ की तरफ नई नामों की तरफ नहीं जाना चाहिए, प्रोसेस की तरफ जाना चाहिए। अब प्रोसेस ये है कि हम वनडे टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं और उससे पीछे हमने 3 वनडे सीरीज जीती। अब अगर हमने जीती तो इसका ये मतलब है कि जो लोग उसमें शामिल थे वो अच्छा हमारी चॉइस थी। सिर्फ एक साइम की इंजरी की जगह पे हम कह सकते हैं कि एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हो, या तो हम वो सीरीज हारे होते तो हम डोमेस्टिक की या ए क्लास मैचेस की या बांग्लादेश प्रीमियर की परफॉर्मेंस पर कोई नया प्लेयर लेते। सो बस ये मुझे नहीं समझ आ रहा हम प्रोसेस को कहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत सादे हो आप माशाल्लाह। देखिए पहली बात तो ये ना, प्रोसेस मैंने कहा है ना, तो प्रोसेस की बुनियाद पे हम खुशदिल को ऑस्ट्रेलिया में नहीं ले गए। प्रोसेस की बुनियाद भी खुशदिल ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में नहीं बनता था, क्योंकि सबको पता है कि कुछ हमारे प्लेयर ऐसे होते हैं कि जिसका बाउंसर्स जो वहाँ पे बॉल हाइट पे आता है। देखो जो मैं भी सीधा सादा हूँ, मेरे भी जो सच है वही मैं बोलूँगा जो है मुँह पे, तो जो उसके लिए उस टाइम से सोचा गया था, ऐसे नहीं, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहिए होता है अपनी कंडीशन एशियन कंडीशन में खिलाने के लिए। तो उसमें हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज थी जिसमें नाम थे, नवाज था, ये था, फातमिनाज था, कुछ और भी ऐसे प्लेयर्स, ऐसे नहीं कि सिर्फ को सोचा गया, मेहरान मुमताज है, ऐसे बहुत से नाम थे। मगर जो आपको प्रोसेस आप बेस्ट कम्बिनेशन बनाते हैं ना उसमें देखते फिर उसको उस तरह चॉइस करते। सम टाइम उसमें से नाम होता है जो बड़ा होता है मगर आप उसको इस पर खामोश हो जाते, इग्नोर करें क्योंकि कम्बिनेशन में नहीं आता। तो इसको देखते हुए हमने इस प्रोसेस को देखते इन प्लेयरों को यहाँ पे लाया हुआ है। रिजवान, आपने 10 दिसंबर 2024 को डरबन में एक बयान दिया था कि फ़खर जमान किसी बीमारी का जो है वो शिकार है। उसके बाद वो चैंपियंस कप के लिए बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। अब आपके नज़दीक उनकी वो बीमारी जो आपने बताई थी वो दूर हो गई है? बिल्कुल मैंने बयान दिया था और उस भी आज भी अपने बयान पे कायम फ़खर जमान के लिए। अगर फ़खर जमान के भी इस जगह पर सीट पे आ जाए उससे पूछ लीजिएगा, उसकी बीमारी ऐसी थी जो उसको भी नहीं पता था। वो उसकी ऐसी बीमारी थी जो उसको भी पता नहीं था। उस बेचारे ने वेस्ट इंडीज से आके हमारे साथ मारखोर की टीम में मैच खेला है और उसने उसमें फिटनेस टेस्ट भी दिया था। मुझे अच्छी तरह याद है जो उसने कहा कि यार रिजवान मैं वाकई में वो उसने टेस्ट पास नहीं किया। उसके बाद उसको पता चला कि वो बीमार है, हालांकि उसको खुद भी वेस्ट इंडीज से सफर करके आया था वो, ठीक है। अगर आप वो आएंगे उससे पूछ लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद वो बीमारी की बुनियाद पर जब आकिब से लोग से बात हुई, देखिए फ़खर जमान से किसी को भी गिला शिकवा नहीं था। जो चीज़ें पीसीबी के साथ 30 अंडर कॉन्ट्रैक्ट में थी वो तो अलग इशू है, उसमें टीम से बाहर होना वो कोई भी ये बात सामने बिल्कुल नहीं आई, आज तक नहीं आई। ना इस पे कभी हमें कहा गया है कि यार इसको टीम में ना जाए, ना चेयरमैन साहब के सामने जब बात की उसने भी ऐसे कुछ नहीं कहा। उसने कहा जो अंडर कॉन्ट्रैक्ट की इशू है वो हर एक बंदे के लिए भाई, जो उसके प्रोटोकॉल्स है वो एक प्लैटिनियम का है, एमर्जिंग के, उन दोनों के लिए एक ही है। मगर इस बुनियाद पर अगर सिलेक्शन का कहा जाए तो बिल्कुल गलत है। फ़खर जमान की कुछ बीमारी थी जिसकी बुनियाद पर उसको रोका गया, फिर चैंपियंस कप उसको इसीलिए खिलाया गया है। अगर खुदा ना खास्ता उसको इस बीमारी से फिर तकलीफ होगी तो पाकिस्तान में अच्छा इलाज कराया जा सकता है बगैर कि उसको हम वहाँ पे ले जाए, तो अफ्रीका जिम्बाब्वे में ले जाए और उसको फिर वो चीज़ आ जाए और हम उसको भाग दौड़ करें तो उसको एक टूर्नामेंट यहाँ खिलाया जाए। अब जैसे भी हो सबको पता कि फ़खर जमान चेंजर है भाई, वो गेम चेंजर है, उसको आप ऐसे एक साइड पे नहीं कर सकते जैसे आप अभी देख भी रहे हैं इंशाल्लाह। तो इसलिए वापस आ गया अभी टीम में। मुझे मैं डॉक्टर नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा था। सलाम।